This meeting is being recorded. યા ચાલુ કરો. સૌને રામકબીર. શ્રી રામકબીર ભક્ત સમાજ ઓફ યુએસએ તથા સર્વે ચેપ્ટરોના સેવાભાવી સેવકો તરફથી આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેનાર સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનું હાર્દિક સ્વાગત કરતા આનંદ અનુભવું છું. આજે પ્રથમ પ્રાર્થનાથી સદગુરુ કબીર સાહેબના આશીર્વાદ લઈશું. ત્યારબાદ આજના મુખ્ય વક્તાને સાંભળીશું. સત્સંગ બાદ અંગે જો કોઈ પ્રતિભાવો હશે તો તેની ચર્ચા કરીશું અને પછી આ કાર્યક્રમની સમાપ્તિ કરીશું. તો સૌ સાથે મળી આપણા સદગુરુને નમન કરી આશીર્વાદ લઈએ. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વૈષ્ણુ ગુરુદેવો મહેશ્વરા ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. સર્વત્ર સુખિનઃ સંતુ સર્વે સંતો નિરામય સર્વે ભદ્રાણી પશ્યન્તુ મા કશ્ચિદ દુઃખ ભાગ ભવેત. વિશ્વમાં સર્વે સુખી રહો, સર્વે નિરામય દુઃખ રહિત હો, સર્વેનું કલ્યાણ થાવો તેવી ભાવના સાથે હાલની વૈશ્વિક મહામારીના સંકટમાં પોતાના જીવના જોખમે દોઢેક વર્ષથી સતત કોવિડ દર્દીઓની ખડે પગે નિડરતાથી નિસ્વાર્થ સેવા આપી રહેલ સર્વે ફ્રન્ટ વોરિયર્સોની સુખાકારી માટે તેમજ વિશ્વના ભક્ત પરિવારોએ ગુમાવેલ સ્વજનોને અશ્રુભીના હૃદયના ભાવે શ્રદ્ધાસુમન અર્પિત કરી તે સર્વે પુણ્યાત્માઓને ચીર શાંતિ મળે અને પરિવાર પર આવી પડેલ અસહ્ય દુઃખ સહન કરવાની શક્તિ મળે તેવી શુભ ભાવના સાથે સૌએ પ્રભુને પ્રાર્થના કરી. વિશેષમાં આ દેશમાં તો આ મહામારીનો કઠણ સમય તો નીકળી ગયો, પરંતુ આપણું વતન ભારતમાં તેમજ ભક્ત સમાજ ભારતના આપણા ગામોમાં હજી આ મહામારીનો કપરો સમય ચાલી રહ્યો છે. તે સર્વે સ્વજનોની સુખાકારી માટે ફરીથી પ્રભુને વંદના. કબીર વિઝડમ સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનો આધ્યાત્મિક વિસામો છે. રોજિંદા જીવનની આદિ વ્યાધિ ઉપાધિમાં પણ સમાધિ રહી શાશ્વત શાંતિની સમજણ આપે છે. દર રવિવારે નિયમિત રીતે ચાલતા આ વર્ચ્યુઅલ કાર્યક્રમમાં જોડાનાર સર્વે કબીર પ્રેમી ભક્તજનોનો આભાર માનીએ છીએ. સદગુરુ કબીર સાહેબની જ્ઞાનવાણીને સાંભળવું, વાંચવું, મનન કરવાની સાથે સાથે જાગ્રત રહી સૌ આચરણમાં મૂકે, અંગત જીવનમાં પરિવર્તન લાવે એવી શુભ ભાવના અને એ જ આ કાર્યક્રમનો હેતુ છે. હવે આજના કબીર વિઝડમ કાર્યક્રમના મુખ્ય વક્તા મહંત શ્રી જય જગેશ્વરજીનો પરિચય આપી આવકારીશું. તેમની જન્મભૂમિ મોરિશિયસ, નેપિયર યુનિવર્સિટી યુકેથી બેચલર ઇન ફાઇનાન્સની પદવી લીધી. મોરિશિયસમાં 23 વર્ષથી બેંકની અંદર એડમિનિસ્ટ્રેટિવ મેનેજરની સર્વિસ પછી પરિવાર સાથે કેનેડા આવ્યા. 2011થી કબીર એસોસિએશન ઓફ ટોરન્ટોની સ્થાપના કરી હાલમાં સ્થાનિક કબીરપંથ સત્સંગીઓને ભેગા રાખી ટોરેન્ટોમાં કબીર સેન્ટર ચલાવે છે. કબીરપંથ પરિવારમાં જન્મેલ હોય, બાળપણથી કબીરજીના બોધથી પ્રેરાયા છે. ગુરુ સ્વામી ભગવાનદાસજી મહારાજના શિષ્ય હોવાથી સ્વામીઓ અને સાધુઓ સાથે ઘણો બધો સમય વિતાવ્યો છે. તેઓ સેન્ટર ઉપર રેગ્યુલર સત્સંગની સેવાની સાથે ઘણા બધા કબીર પ્રેમીઓને પણ આવા કાર્યક્રમથી હિન્દી અંગ્રેજીમાં સત્સંગ ભજનોનો લાભ આપે છે. આજે તેઓ હિન્દીમાં સત્સંગ કરશે. આપણું સદભાગ્ય છે કે તેમણે આપણા આ સામાજિક કાર્યક્રમ માટે સમય કાઢી સદગુરુ કબીર સાહેબની જ્ઞાનવાણીનો લાભ આપ્યો. તો ચાલો મહંત શ્રી જય જગેશ્વરને
આપણે સૌ કબીર ભક્તો સપ્રેમે આવકારીએ અને કબીર સાહેબની જ્ઞાનવાણી સાંભળીએ. સાહેબ બંદગી મનશ્રી વેલકમ. यदि अपारो रक्षे चनेन स्थानो प्रपेदे तरुभावमासु वन्दे सतां यो महनीय कीर्ति तं श्रीकबीरं सततं नमामि तं श्रीकबीरं सततं नमामि. एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय. राम कबीर बनगी साहेब टू ऑल ऑफ यू. मेरे लिए तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज श्री राम कबीर भक्त समाज यूएसए से ये निमंत्रण या आमंत्रण मुझको मिला कि मैं सदगुरु कबीर साहेब के उपदेशों को आगे रखकर सभी को मनन चिंतन का अवसर मिले. इन आने वाले 40 मिनटों में मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सभी इस सत्संग में अच्छे तरह से भाग लें. इन उपदेशों को जो सदगुरु कबीर साहिब ने हमारे लिए छोड़े हैं उन पर हम चिंतन करें और अपने जीवन में उनको उतारने के लिए प्रयास करें. मैं प्रफुल्ल भाई और सभी जो श्री राम कबीर भक्त समाज यूएसए के मेम्बरान को मैं बहुत आभार हूँ कि आप सब ने मुझको ये निमंत्रण दे करके इस सत्संग में भाग लेने के लिए बुलाए हैं. आज का सत्संग का विषय मैंने रखा है फल लागे अति दूर. ये साहिब का एक बहुत ही विशेष उपदेश है. फल लागे अति दूर एक साखी में आता है, तो उसको लेकर के हम थोड़ा चर्चा करेंगे, उस पर हम अमल करेंगे और देखेंगे ये फल क्या है, ये दूरी क्या है, क्या कबीर साहिब ने हमके लिए क्या छोड़ा है, क्या उपदेश है इस साखी में और हमारे जीवन में उसका महत्व क्या है. तो उसी को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे. लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आप के समक्ष ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भी गुरुजन संत जन हुए हैं हमारे जीवन में, उन सबों के प्रति हमको आभार होना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत हम जो अभी कर पा रहे हैं, उन्हीं के आशीर्वचन, उन्हीं के आशीर्वाद से हम अभी ये सब कर रहे हैं. मुझको अभी थोड़ा सा ये याद आ रहा है कि जब मैं छोटा था, लगभग साल होंगे लगभग 1973-74, एक छोटा सा गांव में मैं रहता था. और गांव तो छोटा था, सभी लोग मिलजुल करके रहते थे. और अभी आधुनिक जीवन के द्वारा जैसे लोग अभी जी रहे इस समाज में बहुत बदलाव आ गया है. तो एक बार उसी समय 73-74 के बात है, 1973-1974 ऑन दैट टाइम, स्वामी रामस्वरूप दास जी साहेब आए थे और उस गांव में जहाँ पर हम रहते थे, मैं छोटा था, वो सत्संग करने आए थे और रात्रि का समय था. उस समय गांव में तो बिजली का उतना नहीं था, घरों में बिजली नहीं था, तो लोग जाते थे सत्संग सुनने के लिए चिराग लेकर के और साहिब से प्रार्थना करते थे, स्वामी जी से प्रार्थना करते थे, हे बापू, हे स्वामी जी, हमारे घरों में उजाला हो, ऐसे हमारा प्रार्थना है. तो साहिब हमेशा आशीर्वचन देते थे, आशीर्वाद देते थे कि आप सभी को साहिब के कृपा से सब अच्छा ही बनेगा. तो अब जब हम देखते हैं उसी गांव में, उस समय की बात है, बिजली नहीं था घरों में. आज तो उस समय स्वामी जी के तरफ जाते थे, सत्संग सुनने के लिए जाते थे, ये सब करने जाते थे, क्या उजाला मिलने के लिए, प्रकाश मिलने के लिए, उनके जीवन में प्रकाश ताकि आए. अभी देखा जाए तो सभी घरों में बिजली तो है लेकिन प्रकाश नहीं है.
बिजली तो आ गई, कितनी आधुनिकता है, कितने इस दुनिया में, इस समाज में कितने बदलाव आया है, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो उजाला हमारे अपने जीवन में होना चाहिए, जो प्रकाश हमारे अपने जीवन में होना चाहिए, वो है, ये इस बात पर हमको अमल करना चाहिए। तो इसीलिए मैंने इस विषय को लेकर के मैंने सोचा थोड़ा सा आज हम चर्चा करेंगे कि फल लागे अति दूर। कौन सा फल? जब हम प्रार्थना करते हैं, सत्संग सुनते हैं, गुरुजनों संतजनों के पास जाते हैं, क्या हम फल के लिए जाते हैं? अब इस साखी ही को देखेंगे तो सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं ना कि वृक्ष कबहू नहीं फल भाके, नदी न अचवे नीर, परमारथ के कारण संत जन धरा शरीर। तो संत जन जो आते हैं हमारे जीवन में, इस दुनिया में आते हैं परोपकार के रूप में, औरों को के जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमारे जीवन में आते हैं। लेकिन इस साखी को देखेंगे, वृक्ष कबहू न अपने फल को भाते। तो वृक्ष फल देते हैं, लेकिन वो स्वयं ये फल वो पाते नहीं है, औरों के लिए देते हैं। नदी भी ऐसा ही है, बहते हुए नदी पानी औरों के लिए बहते हैं, अपने आप के लिए नहीं। और इसी कारण संतजन आए हैं इस दुनिया में, गुरुजन आए हैं इस दुनिया में, हमको चेताने के लिए, हमको जगाने के लिए, हमको सही रास्ता पर लाने के लिए, हमको हमारे लिए मार्गदर्शक बनने के लिए, हमको मार्ग दिखाने के लिए। ऐसे हमारे जीवन में संतजन गुरुजन आते हैं। तो जब हम कुछ सीख लेते हैं गुरुजनों के द्वारा, संतजनों के द्वारा, तो उसका लाभ हमारे जीवन में कैसे उसका लाभ हम पाए, कैसे हम उन सब हमारे जीवन में उतारे। फल लागे अति दूर। कौन सा फल? क्या ये बात सच है कि हमको फल ही के नजरिए से सब कुछ देखना चाहिए? क्या हमको फल ही में हमारा सुरति बंधे होना चाहिए? बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। हम हमारे अपने जीवन में, मान लीजिए कि व्यावहारिक जीवन में हमको तो कुछ न कुछ करना है, हमको स्टडी करना है, पढ़ना है, लिखना है, आगे जाकर के हमारा अपना कार्य करना है, हमारा जो परिवार है उसका भी ख्याल रखना है। ये सब तो व्यावहारिकता से हमको ये सब तो करना ही करना है, ये तो सही बात है, कोई बात नहीं है। लेकिन इससे अगर हम जुड़ लेते हैं हम अपने आप को, तो हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, हमारा जो जिस लक्ष्य से हम इस जीवन में आए हैं, वो पूरा होगा या नहीं, इसको इस पर हमको अमल करना चाहिए, करना ही चाहिए। जब लोग बहुत बड़े हो जाते हैं पढ़ लिख करके या कार्य करके, तब क्या होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है शुरू में कि जैसे संत जन आते हैं, सत्संग देते हैं, लोगों को आशीर्वचन देते हैं, तब जब लोग उस स्तर पर आ जाते हैं जहाँ पर उन लोगों वो सोचते हैं कि उस स्तर पर हमको होना है, तब वो क्या करते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। उस स्तर पर जब पहुंच जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि संत जनों की आशीर्वचन के कारण वे लोग इस स्तर पर आ पहुंचे हैं। तो हमको कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि वो आशीर्वचन, वो उपदेश, वो जो कृपा और दया रहा हुआ है हम पर गुरुजनों के द्वारा, उसको हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर लोग फल से जुड़े रहते हैं। तो फल से जुड़े रहने के कारण वो ये सब भूल जाते हैं कि हम पर कौन सा कृपा हुआ है, गुरुजनों का कैसा कृपा, कैसा दया हुआ है हम पर। तो पहले देखते हैं कौन सा फल साहिब इस साखी में कहते हैं, फल लागे अति दूर। वो फल ही का मतलब क्या,
जिन लोगों का पहुंच तक नहीं जाए। ये इस उदाहरण ये साखी पर ले रहा हूं, जो वृक्ष फल दे रहे हैं, जो पेड़ फल दे रहे हैं, लेकिन हम उस फल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो उस फल का क्या मतलब होता है? देखिए, हमको फल से मतलब नहीं होना चाहिए, हमको मतलब होना चाहिए हमारा मार्ग से। कौन सा मार्ग पर हम चल रहे हैं, कहाँ वो मार्ग हमको ले जा रहे हैं। फल दूर है या पास है, ये भी हमारा मतलब की बात नहीं है। हमको कार्य करना है, हमको जो करना है, हमारा जो मार्ग पर, हमारा जो, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं स्पिरिचुअल पाथ, जब उस पर हम चलते हैं तो हमारा ध्यान, हमारा सुरति वो मार्ग पर होना चाहिए, ना कि फल पर। तो इसी लाभ को लेकर के जो लोग भटक जाते हैं, वो लोग समझते हैं कि ये जो फल है हमको पाना ही पाना है। कौन सा फल? वो फल जो वो समझते हैं कि इस दुनिया में, इस संसार में उन लोगों को काम आ सके। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो भी वो पाएंगे यहाँ पर, वो उनके साथ जाने वाले नहीं है। जो जाने वाले हैं उनके साथ, वो है उनके कर्म। कौन सा कर्म वो करे हैं, वो जाएंगे उनके साथ, ना कि वो इस दुनिया में, इस संसार में वो सोचते हैं और समझते हैं कि हमने ये फल पाया है। ये फल पाने के लिए ये इसमें कोई जैसे इसका लक्ष्य ही बनता नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य है मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, वो हमारा लक्ष्य है। तो अगर उस पर अमर करेंगे तो फल की बात नहीं करेंगे। फल लागे अति दूर वो लोग करेंगे। ओ, फल आ गया लेकिन पहुंच तक नहीं आ रहा है, हमारे पास तक नहीं आ रहा, या कि हम उनके पास नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बात क्या, कैसे उन लोगों के जीवन में, इन लोगों के आध्यात्मिक जीवन में उसका क्या मूल्य रहेगा, ये हमको दे करके जाना है। तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? कौन सा बड़ा? गुरु के पास जाते हैं या संत जन के पास जाते हैं, हमको ऐसे आशीर्वाद दो कि हम बड़े से बड़े हो जाएं। कौन सा बड़ा होना चाहते हैं? वो बड़ा जो किसी और के काम ना आ पाए, ये बड़ाई तो उसका मतलब होता ही नहीं है। हम जो मानुष जीवन हमको मिला है, ये इनका लाभ उठाने के साथ, ज़्यादातर इनका लाभ उठाने के लिए हमारा जो है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किसी और का काम, हम खुद अपने काम कर सके और औरों को भी सेवा कर सके, परोपकार बना सके। तो ये लेकर के हमको जाएंगे हमारे मार्ग पर, हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर, तब हमको जा करके मोक्ष की प्राप्ति हो सकेंगे। अब इस दुनिया में जो अभी स्थिति है, जो चल रहा है, हम सब जानते हैं। अभी अभी शुरू में प्रफुल्ल भाई ने महामारी की बात की। ऐसे प्रार्थना हम करते हैं कि सारे विश्व से ये महामारी चली जाए। लेकिन अगर हम समझे महामारी का कारण ही क्या है, क्यों ये कोविड, ये वायरस इस दुनिया में पैदा हुआ, अगर हम ठीक तरह से अमल करेंगे इस पर, तो हमको ये बात आएंगे दिमाग में कि हमारा खुद के कार्य से, हम जब मैं कह रहा हूँ मेरा मतलब है ये जो मानुष जात है, उन्हीं के कारण, ये उन्हीं के लापरवाही के कारण ये महामारी आए हैं, और ज्यादातर बढ़ भी रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि लापरवाही कम नहीं हो रहा है, हालांकि बढ़ रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे संसार में अभी किसी भी कोने में ये महामारी तो चालू ही है और बढ़ रही है। प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना करेंगे ये तो बात ठीक है, हमारे भक्ति के द्वारा, हमारे आराधना के द्वारा हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ये वायरस जल्द से जल्द
इस विश्व से चले जाए। लेकिन हम अपने जीवन में अगर आध्यात्मिक रूप से न जी पाए, अगर हम सांसारिक में चले जाते हैं, अगर हमको ये पता न चले क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, अगर हम विवेक से काम ना ले, तो ये महामारी तो चला जाएगा, एक दूसरा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो जीने का ढंग है उस पर भी हमको अमल करना है। मानुष जात जो है सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अन्य जो जीव जंतु है उन लोगों के पास जो विवेक हमारे पास है उन लोगों के पास नहीं है। तो जिम्मेदारी हम पर पड़ता है कि हम उस विवेक का इस्तेमाल कैसे करें, उस विवेक का हम कैसे अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में और तथा समाज में उस विवेक का कैसे लाभ करें। अब दूसरी बात यह है कि अपेक्षा जो है, आशा जो है, आशा तृष्णा जिसको कहते हैं, ये अगर किसी जीव में पड़ जाता है, मनुष्य जीव पर पड़ जाता है, तो वो उसमें बन जाते हैं। बनने के कारण तब उससे निकल नहीं पाते हैं, तो उसमें चले जाते हैं, जैसे कहते हैं बंधन में बन जाते हैं और उनसे बाहर नहीं आ पाते हैं। तो हमारा आशा, हमारा अपेक्षा, हमारा जो किस पर बनना चाहिए, ये भी साहिब ने हमको कहा है। आशा एक गुरुदेव की दूजी आश निराश। हमारा जो आशा है, हमारा जो कहाँ पर हमको ध्यान देना है, कहाँ पर हमको अपने सुरति को लगाना है, साहिब कहते हैं गुरुदेव पर। और गुरुदेव यहाँ पर और कोई नहीं, हम ये गुरु शब्द जो आता है हमारे जो ग्रंथों में आता है, इसका हमको बहुत अच्छे तरह से समझना चाहिए, क्योंकि अगर हम गुरु को मानुष मान लेते हैं तो ये गलत मतलब निकल गया गुरु के लिए। गुरु है वो ज्ञान जिनकी प्राप्ति के लिए हम सिर्फ गुरु के पास जा सकते हैं। यह ज्ञान जब हमको प्राप्त हो जाए, हम प्राप्त कर लेते हैं, हमारे जीवन में उतार लेते हैं उस ज्ञान को, क्योंकि साहिब कहते हैं ज्ञान गुरु मन चेला, यह ज्ञान ही गुरु बन जाता है। तो आशा एक गुरुदेव की, तो कौन सी आशा? साहिब कहते हैं कि जब तक हम उस ज्ञान को अपने जीवन में नहीं ला पाए, जब तक उस ज्ञान, जो ज्ञान हमको एक काग से हंस बना सकते हैं, जो ज्ञान हमको यहां से ऊपर ले जा सकते हैं, जब तक वो ज्ञान हम में नहीं आए तो फायदा ही क्या है इस मानुष जन्म का। दूजी आश निराश। और जो आशा हम रखते हैं इस दुनिया से, इस संसार से जो भी आशा रखते हैं हम कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, हमको ये इतना चाहिए कि हम लोगों को दिखा सके हम कितने बड़े हुए, बड़ा हुआ तो क्या हुआ। साहब कहते हैं कि दूजी आस निराश, उस आस में निराश है। There is despair in that hope. उस आस को लेकर के हम आगे बढ़ नहीं सकते। सिर्फ एक वो आस है जो गुरुदेव के पास है और जो गुरुदेव हमको दिला सकते हैं। तो दूसरे लाइन में इस साखी का साहिब कहते हैं, आशा एक गुरुदेव की, दूजी आस निराश, पानी में घर मीन का, सो क्यों मरे प्यास। तो इसको हम समझिए। अगर मीन माने मछली, मीन का घर पानी में है, मीन मछली तो पानी ही में रहते हैं। तो अगर मीन या मछली अपने प्यास बुझाने के लिए किसी और चीज पर उसका आस लग जाए, वो आशा रखते हैं कि हमारा प्यास बुझेगा, लेकिन
कुछ और से। वो उनका घर तो पानी ही में है, वो पानी ही में रहते हैं, उनको प्यास बुझाने के लिए कहाँ जाना है, वहीं से सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन अगर वो उस प्यास बुझाने के लिए कहीं और उनके आस लग जाए, इसलिए साहब कहते हैं ना, हम अपने आस को गुरुदेव पर रखेंगे तभी हमारा जीवन सार्थक होंगे। आशा एक गुरुदेव की दूजी आस निराश। जैसे मछली पानी में रह करके अगर प्यास को ना बुझा पाए तो उस पानी का मतलब ही क्या। तो ये पानी जो हम कर रहे हैं, ये जो इधर पर जो उदाहरण हमको दे रहे हैं कभी साहब, मीन और उनके घर में उनके पानी जहाँ पर वो रहते हैं, इस पर हमको समझना चाहिए। तो हमारे लिए ये क्या बनता है, हम जहाँ पर है इस तत्व में, हम किसी और जीव नहीं है, हम मानुष जन्म है, हमको मानुष जन्म मिला है। इस मानुष जन्म में हमको जो भी मिला है वो ही सब कुछ है हमको अपने प्यास बुझाने के लिए। जैसे यहाँ पर क्या है, कैसे मीन अपने प्यास को बुझाए, तो हम हमारे प्यास को कैसे बुझाए, हमको ये मानुष देह मिल करके ही हमको ये सब मिल गया है। लेकिन क्या करते हैं हम बाहर जा करके ढूंढते हैं, ना कि हम अपने अंदर ही ढूंढते हैं। अगर हम अपने आप में ढूंढेंगे, साहब कहते हैं, तो वो प्यास बुझाने के लिए हमको खुद अपने आप अंदर में मिल जाएंगे। तो इसीलिए क्योंकि साहिब ने कहा है कि आशा एक गुरुदेव ही पर रखो, किसी और पर नहीं। और मैंने आपको कहा गुरुदेव कौन, गुरु ज्ञान मन चेला। हम अपने मन को चेला बनाना ही बनाना है। जैसे हम दास कहते हैं ना, कौन है दास, दास वो है जो अपने आप को तन मन धन से गुरु पर समर्पित कर लिए, वो दास होंगे। तो ऐसे दास होंगे, ऐसे मन होंगे दास जो चेला हो गया गुरु का। और गुरु कौन, गुरु तो ज्ञान ही है और कुछ नहीं है। और वो ज्ञान जब मिलता है गुरु से, हम उस ज्ञान को क्या करते हैं, उस हमारे अपने जीवन में कैसे उतारते हैं, ये बात हमको अमल करना है। यही पर हमारा विवेक का काम आता है। अगर विवेक से काम लेंगे तभी हमको पता चलेगा कि हमारा प्यास बुझेगा इसी घर में, इसी देह में जो भी हमको दिया हुआ है, जो भी डाला हुआ है इस मानुष देह में, हमको इसी में मिल जाएगा। तो वो क्या है, हमारा अपने प्यास बुझाने के लिए क्या है वो। जैसे मीन के लिए पानी है प्यास बुझाने के लिए, हमारे लिए पानी नहीं है। पानी तो देह का प्यास बुझाने के लिए है, हाँ ये तो ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं हमारे आत्मा, उसका प्यास कैसे बुझाएं। कहते हैं कि भगवान, साहिब, जो भी नाम से आप भगवान को पुकारते हैं, सर्वव्यापक है। तो कैसे वो सर्वव्यापक बनता है। अगर वो सर्वव्यापक है, हर जगह पर है, तो हम में भी होना चाहिए। और वो प्यास बुझाने के लिए उसी का सहारा हमको लेना चाहिए। इसीलिए गुरुदेव, आशा एक गुरुदेव की। वो ज्ञान जब हम में उतर जाता है, हमको ये ज्ञान हो जाता है कि हमको अपने प्यास बुझाने के लिए वो जो जिसको हम अंग्रेजी में कॉन्शियसनेस कहते हैं, हम उसी में है, वो बाहर नहीं है। हाँ बाहर भी है, लेकिन हमारे अंदर में भी है। वही जो बाहर है हमारे अंदर में, वो ही हमें भी है, वो दूसरा नहीं है। अगर भगवान सर्वव्यापक है, साहिब सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वव्यापक है, तो वो सर्वव्यापकता हम में क्यों नहीं होंगे। तो क्यों हम आशा किसी बाहरी चीज पर हम रखते हैं, क्यों हमारा पकड़ किसी बाहरी चीज पर आकर के रुकते हैं। तब हम कहते हैं कि हाँ अब जो मैं चाहता था वो हो गया, तो हमारा जीवन अब सार्थक हो गया है।
कैसे होगा? होने वाला नहीं है, क्योंकि ये देह तो नश्वर है, ये देह का भरोसा नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं महामारी का, इसमें भी आता है जिन जिन को हम जानते थे, या तो जवान हो या बूढ़े हो, इस महामारी के कारण किसी के भी जान जा सकती है। तो देह को संतुष्ट करने के लिए ये हम आए नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो भी जीव जंतु है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो व्याघ हो, जो भी, चाहे कुत्ते हो, जो भी है, वे लोग भी अपने देह को संतुष्ट कर सकते हैं। लेकिन हम आए हैं एक खास लक्ष्य के लिए, इस मानुष जन्म को लेकर के। तो इसीलिए हमको भटकने की जरूरत नहीं है, हमको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। बाहरी जो है ये सिर्फ सांसारिक व्यवहारिक जीवन के लिए है। हाँ, हमको घर चाहिए, हमको धन चाहिए, हमको काम चाहिए, ये सब तो चाहिए, लेकिन ये व्यवहारिकता के लिए है। इसको हम लेकर के हमारा लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। तो उस आस को अगर हम सही जगह पर टिकेंगे, वो आस जो हमारा है, अगर वो सही जगह पर जाकर के टिक जाएगा, तभी हमारा जीवन सार्थक बन सकता है। अब इस अगले साखी में साहिब कहते हैं कि जो आशा हम रखते हैं, ये जो आस हम करते हैं ना, इसका जो मूल्य क्या है, अब सांसारिक ही रूप से हम देख लेंगे तो, क्योंकि साहिब कहते हैं सभी नश्वर है, सभी नश्वर, ये देह नश्वर है और ये विश्व भी नश्वर है। कहते हैं ना, प्रलय और महाप्रलय, एक दिन ऐसा आएगा वो भी सब नाश हो जाएगा, उसका भी। तो साहिब कहते हैं कि आशा जीवे जग मरे, जग तो मर जाएगा एक दिन। जग मानिए जग के लोग, जो भी लोग हैं इस दुनिया में, बार बार कर करके सभी तो चले जाएंगे। हाँ, बात दूसरी है, वे फिर से जन्म लेंगे, कौन से योनि में ये पता नहीं, लेकिन उसका जो ये जीवन है वो तो खत्म होगा ही होगा। तो साहब कहते हैं आशा जीवे जग मरे, जग मर जाएंगे, लोग मरे मरी जाए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। हम ही अपने जीवन में अगर हम अपने अतीत को देखेंगे तो हमको पता चलेगा हमने कितने अपने जीवन का सफर तय किए हैं और हमने क्या क्या किए हैं अपने जीवन में। कितने ऐसे हम कार्य किए हैं अपने जीवन में जो उस लक्ष्य की तरफ जाता है। अगर नहीं तो उस आशा में बंधे थे। तो साहब कहते हैं वो आशा जिएंगे, वो आशा तो रहेंगे, पकड़ में कर लेंगे, सब आप जाएंगे तो और लोग होंगे, वे जाएंगे तो और लोग होंगे। तो आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मरी जाए, धन साचे ते भी मरे, उबरे सो धन खाए। अब धन की बात आ रही है। धन मानी जो व्यावहारिक धन है, ना सिर्फ पैसे, जो भी है, बंगला मोटर जो भी है हमारे पास। धन साचे ते भी मरे। अभी ऐसा भी है ना कि कई लोग ऐसे समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास धन होंगे तो जो भी समस्या आएंगे हमारे जीवन में उसका पार हम कर सकेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। धन का भी कार्य सीमित है, उसका भी सीमा है। अभी हम अपने स्वास्थ्य को ही ले लेते हैं। अभी कितने रिसर्च के बाद ये वैक्सीन जो है कोविड का अभी आकर के मिला है, वो भी इतने हम नहीं कह सकते हैं कि वो सही रूप से सभी को जैसे रक्षा कर लेंगे इस वायरस से या अन्य वायरसों से। लेकिन ऐसे लोग जो सोचते हैं कि जो धन सांचे माने एक्यूमुलेट, लाइक बढ़ते रहते हैं। धन सांचे ते भी मरे, कितने धन आपके पास होंगे
अगर आप सोचेंगे, ऐसे में कितने उदाहरण आते हैं हमारे इतिहास में। अगर हम देखेंगे, जो नापोलियन राजा था, आपको ये किस्सा तो मालूम ही होगा, कितने वो कब्जा करने चाहते थे कितने देशों पर, ज्यादा से ज्यादा वो धनी होना चाहते थे, ज्यादा से ज्यादा हमारे पास देश है, ये सब है, प्रजा सब। लेकिन जब वो बीमार पड़ गए, उन्होंने कहा ना कि हमारा जो ताबुक है डॉक्टर ही ले करके शमशान घाट तक ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि डॉक्टर भी हमको इस बीमारी से नहीं बचा पाए, और हमारे हाथ जो है वो ताबूत के बाहर होना चाहिए, ताकि सभी लोग को पता चले कि मैं जब जा रहा हूं, जितने भी धन मैंने कमाया है, एक भी मेरे साथ नहीं जा रहा है, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। तो धन साचे ते भी मरे, जो सोचते हैं कि इतने धन हम पा लेंगे तो हम सभी समस्या से दूर हो जाएंगे, कोई भी समस्या हमारा सभी आसान हो जाएंगे हम उन समस्याओं को पार करने के लिए। भाई इतिहास में आप देखेंगे, रावण जो है वो भी अमर होना चाहते थे। देह का अमरता कहां होता है? सो धन साचे ते भी मरे, उबरे सो धन खाए। और जो बचा है, जो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप नहीं खा आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, कौन खाएंगे? जो आपके बाद आएंगे। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, हमको धन कमाना है, बच्चों को पालना है, परिवार को देखना है, ये सब कहना है। लेकिन जो बुरी बात है इसमें, जो हमारा खास हमको समझना है, आसक्ति की बात है। धन कमाना एक काम, लेकिन उसमें आसक्त रहना, अटैचमेंट जिसको कहते हैं, ये साहिब हमको चिता रहे हैं इसमें कि ये आस में मत रहो, क्योंकि आशा तो रह जाएंगे, अन्य लोग जो आपके बाद भी आएंगे वो भी आशा में लगे रहेंगे, लेकिन आप चले जाएंगे। हमारा कर्तव्य बनता है कि जो हमारे गुरुजनों ने, सदगुरु कबीर साहिब ने हमारे उपदेश छोड़े हैं, गुरुजनों ने हमारे कितने परोपकार से हमको जो भी विरासत में, मुझको कहना चाहिए विरासत में हमको ये सब उपदेश दिया है, हमारा कर्तव्य बनता है कि जो नई पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी, उन लोगों को भी ये जो ज्ञान है, उन लोगों को भी हम उनसे भी हम बांटें, ताकि वो भी अपने जीवन को सार्थक बना सके। मैं जानता हूँ, जैसे मेरा ही आप उदाहरण ले लीजिएगा, मैं मॉरिशस से हूँ, लेकिन मॉरिशस को छोड़ करके मैं ही कनाडा में आया हूँ, यहाँ पर बसा हूँ। ऐसा देखा जाए तो कितने लोग, मान लीजिएगा भारत ही को ले लेते हैं, कितने लोग भारत को छोड़ करके कितने अन्य देशों में जाकर के बसे हैं। हमको ये याद रहना चाहिए कि हमको जो विरासत में मिला है उसको हमको छोड़ना नहीं है। जो उपदेश गुरुजनों ने, सदगुरु कबीर साहिब ने हमारे छोड़े हैं, उसको हमको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम उसको लेकर के आए हैं, जहां पर भी हम बसे हैं, कनाडा में, अमेरिका में, ट्रिनिडाद में, जहां पर भी हम बसे हैं, अगर हम उसको लेकर के नई पीढ़ी, जो आने वाली पीढ़ी है, उस पर उन लोगों को हम ये ज्ञान न बांटे, तो हम एक बहुत बुरे काम करेंगे। मेरा यही निवेदन है कि जो भी हम कर रहे हैं अपने लिए तो करना तो उचित है, हमको करना ही है, लेकिन उसको लेकर के जो हम कर रहे हैं, हमको पता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो अगर वो सही है तो आने वाले पीढ़ी को भी चेताना चाहिए कि इसी रास्ते पर, इसी मार्ग पर भी उन लोगों को भी चलना है, उन लोगों को भी उसी लक्ष्य को लेकर के चलना है। मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि जब हम ज़्यादातर पश्चिमी देशों में आकर के बसते हैं, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो अन्य सभ्यता है, हमारे सभ्यता से
काफ़ी अलग है। तो जो हम जानते हैं वो सही है, जो हमको, जैसे मैं कहता रहता हूँ, विरासत में हमको मिला है और हम हमारे लिए एक पूंजी है। हमको हर वक्त हमेशा जो हमारे बच्चे हैं, जो नई पीढ़ी बाद में जा कर के आगे उन लोगों का भी और अगले पीढ़ी होंगे, अगर हम उन लोगों को ये सौंप न दे, उन लोगों को चेता न दे, उन लोगों को ये ज्ञान की प्राप्ति न दे, तो हम जैसे गलत काम करेंगे। तो मेरा यही आपसे सबसे निवेदन है। मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझको बुलाए हैं ये दो शब्द करने के लिए, संत कबीर साहिब के उपदेशों के ऊपर ये सरलता से थोड़ा वक्तव्य देने के लिए। लेकिन मेरा निवेदन आप सब से है कि जो आप भी अगर जो नए पीढ़ी को भी चेता सके, क्योंकि मैं देखता रहता हूँ कि हमारे सत्संग में यहाँ पर भी और बहुत और जगहों में ज़्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते रहते हैं, जो जैसे वो कम उम्र के होते हैं, जैसे 10, 15, 18 साल के या 20 साल के, 25 साल के, उनमें इतने वे रुचि नहीं रखते हैं। हमको उन लोगों को भी चेताना है, उनके जीवन को सार्थक बनाने के लिए उनको भी ये चेताना है। मेरे वक्तव्यों को पूरा करने के लिए मैं आपसे एक आखिरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो सांसारिक में और आध्यात्मिक जो जीवन में जो डिफरेंस है, इन दोनों में हमको अमल करना है, क्योंकि हम दोनों रास्ते पर हमको चलना ही चलना है। ये नहीं है कि अगर हम आध्यात्मिकता पर रहेंगे तो हम सांसारिक भूल जाएंगे, ये नहीं है। हमको खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, घर भी, सब कुछ तो रहना ही है। लेकिन जो हमारा मूल्य, जो जैसे कहते हैं हमारा सभ्यता जो होता है, जो हमारा मूल्य है, किस ढंग से क्या खाना है, कहाँ पर सोना है, कैसा हमारा घर होना चाहिए, हम समाज में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब अमल होता है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान से। तो आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के अगर हम हमारा सांसारिक जीवन को जिएंगे, तभी हम सार्थक, हमारा जीवन सार्थक होंगे। इसी को लेकर के मेरा वक्तव्य को यहीं पर मैं विराम देना चाहता हूँ। एक बार फिर से आप सबको मेरा बहुत बहुत आभार कि आपने मुझको इस मंच पर बुला करके इस सत्संग में वक्तव्य देने का मौका दिया है। I am very, very grateful and thankful to all of you for inviting me to speak and give my views on the teachings of Sant Kabir Sahib. And I very much appreciate that the very name of your satsang is Kabir's Wisdom. And I think it's the right way of putting it, because even this morning when I was giving my satsang, I was explaining how when we are able to transform knowledge to wisdom, we've been able to accomplish what we have to accomplish on our spiritual path. So thank you very much. May Sant Kabir Sahib's blessings be upon all of you, and may the whole world be graced by his blessings, so that this pandemic, which is still creating lots of havoc in the whole world, is able to dissipate. Thank you, thank you, thank you. Ram Kabir Sahibandi, Sahibandi, Sahibandi. राम कबीर भाई बंदगी। जैसा आपने ये कबीर जी ज्ञान की बहुत चर्चा हमारे साथ आज शेयर की, बहुत आनंद हो गया। हम सब भक्तजन यहाँ पे ज्वाइंट हुए हैं, वो सबको आपने बोला इसी तरह फल लागे अति दूर का जो सब्जेक्ट लिया आपने, कबीर की वाणी ली,
बहुत आनंद हो गया। दोहे सदगुरु के समझाए हमको, और पूर्वजों ने जो हमें दिया है, विरासत में मिला है, ये कबीर का ज्ञान, वही सच्ची पूंजी है। और उन्हीं को ध्यान रख के हम भक्त समाज में, ये देश में आगे बढ़ रहे हैं। महंत श्री राम स्वरूप दास जी हमारे गुरु जामनगर के, उसके साथ बहुत परिचय हुआ था। हमारी कम्युनिटी को श्री राम कबीर मंदिर कारसन में आए थे, और उनका भी सत्संग बहुत अच्छा रहा था हमारे साथ, बहुत ज्ञानवाणी मिली थी। जगदीश दास जी साहेब भी आए थे, उसका भी सबको परिचय हो गया है, और आज आपका भी दर्शन हो गया, बहुत आनंद हुआ। थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे जो दर्शक है यहाँ, उनका कोई जो सवाल है तो आप कृपा करके उसका मन का समाधान करें। तो सब भक्त भाई बहनों, आपको भी कोई प्रश्न है, कोई सूचन है, कोई प्रतिभाव है, तो आप अपना चैट बॉक्स में लिखें और हाथ ऊंचा करके आप जय जगेसर जी साहेब को निवेदन कर सकते हैं। आइए गोविंद जी। राम कबीर जागेश्वर साहिब जी, राम कबीर, खूब राम कबीर। आभार। आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम लोग ने जो पूंजी मिली है उसको हमें आगे बढ़ाना है। आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर एक सवाल मुझको होता है कि कबीर साहब की जो वाणी है बहुत गूढ़ है, और दूसरी बात यह है कि हम लोग हिंदू भी है, तो रामायण महाभारत ये भी हमारा ग्रंथ है। और कई लोग ऐसे कहते हैं कि ये अवतार, रामावतार और कृष्णावतार, वो रियल अवतार नहीं थे, वो तो बनाई बात है, ऐसे भी बोलते हैं। तो जो हमारा हिंदुइज्म है, रामायण महाभारत है, उसको भी हम कबीर साहब की वाणी में बांट ले तो कैसा रहता है। और बात, सच्ची बात तो ये है कि कई लोग बोलते हैं कि कबीर साहब वही सत्य है, वही भगवान है, दूसरा कुछ है ही नहीं। तो कंफ्यूजन कई लोग को होता है। तो इस बारे में आप कुछ बोलो, क्या कहना है? आपने बहुत सही सवाल आपने किए हैं गोविंद भाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मान्यता की बात है, जो हम मानते हैं या नहीं मानते हैं। एक भजन आता है मेरे ख्याल में से, जो कहते हैं, मानो तो ये गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। इस बात को लेकर के मैं थोड़ा चर्चा करूंगा यहाँ पर। देखिए, वही पानी है, अगर कोई इसको भगवान मान लेते हैं, ये स्वच्छ पानी मान लेते हैं, और कोई और उसको देख करके उनमें कुछ आता ही नहीं है, वो समझ लेते हैं ये एक नदी है जैसे अन्य नदियों है, तो उनके लिए ये क्या क्या मतलब होगा उसका। तो देखिए, आपने जो प्रश्न किया है, हम हिंदू भी है, हम कबीर साहब को भी मानते हैं। एक बात को मैं आपको बताऊं, जो भी हमारा जो ग्रंथ हुए हैं, या चाहे वो महाभारत हो, रामायण, मैं भी पढ़ा, सभी हम पढ़ते हैं, इसमें हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, ये भी जो भी ग्रंथ है, अभी कृष्ण भगवान पर हो या राम भगवान पर हो, विष्णु भगवान पर हो, या जो भी है, इसमें आध्यात्मिक रूप से
हमको क्या लेसन्स मिलते हैं, इसको हमको देख करके जाना है। अब जब जैसे आपने बताया है, कई लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं मानेंगे कि ये अवतार हुए हैं या नहीं। वैसे तो संत कबीर साहिब के उपदेशों के द्वारा हम सब में भगवान है। जितने कृष्ण भगवान में भगवान था, जितने राम भगवान में भगवान था, उतना ही भगवान हम में भी है। इस बात को हम लेकर के थोड़ा हमको ये चिंतन मनन करना है। ध्यान से सुनिए। Where the difference, कहां पर ये आता है जो अलग की बात, कितने दूर तक हम ये पहचान पाते हैं कि हम में भगवान है, यहां पर लोग चुक जाते हैं। तो इसीलिए ये समझने लगते हैं कि ये अवतार है, ये अवतार है, ये अवतार है। हम भी अवतारित हुए हैं, लेकिन अगर हम उस गहराई तक नहीं जा पाते हैं जहां हमको ये परिपूर्णता से हमको ये मिल जाए कि हाँ, जो हम कहते हैं भगवान सर्वव्यापक है, मैंने उसका भी जैसे हमको अनुभव हो गया है, क्योंकि हम उतने गहराई तक जा चुके हैं कि हमको उनका भी जैसे प्रेजेंस, डिवाइन प्रेजेंस जिसको कहते हैं, उसका भी अनुभव हमको हो गया। अब बात हुई हम किसको मानते हैं या किसको फॉलो करते हैं। अगर हम राम भगवान को मानते हैं या विष्णु भगवान को या कृष्ण भगवान को, अगर सभी भगवान ही है तो हम क्यों न सभी को मानते हैं। अलग बात ये होता है कि हम कैसे पूजा करें। I think the real question is, let's say we all agree that श्री राम भी भगवान है, लॉर्ड कृष्णा भी भगवान है, लॉर्ड विष्णु भी भगवान है, लॉर्ड ब्रह्मा भी भगवान है। अब कैसे हम पूजा करें, हम आराधना कैसे करें, ये हमको लाना है हमारे जीवन में। I think the difference lies in how we worship God. उसका आराधना कैसे करते हैं, उस पर हमको अमल करना है। अगर हमको भगवान एक श्री राम जी की मूर्ति में दिखते हैं, तो उसका आराधना करके, मान लीजिए एक बात को लेकर के मैं आपको बता रहा हूं, वो भी ठीक ही है, गलत तो नहीं है। जितने भगवान है उस मूर्ति में, उन्हीं तरफ जैसे भी जहां पर भी भगवान है वहां पर भी है। लेकिन जब हम और गहराई में जाएंगे, तब हमको पता चलेगा कि हम ही में भगवान है, तो उनकी जरूरत है या नहीं है। In my opinion, it's kind of a ladder. Somebody may start, कोई किसी एक रंग पर स्टार्ट करता है, जब तक वो उस जगह तक नहीं पहुंचता है जहां पर उसको ये अमल हो जाता है कि भगवान हम में है, तब तक वो ये अन्य जो कार्य है, अन्य जो आराधना है, अन्य जो पूजा के तरीके हैं, ये सब वो करते रहेंगे। इसमें बुराई नहीं है, सभी भगवान ही का बनाया हुआ है। अगर वो अच्छे थे, हम कहते हैं ना मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों कहते हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम? क्योंकि हम उसको एक स्तर देते हैं कि उन्होंने ऐसे अपने जीवन को जिया है कि वो मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। हम भी कर सकते हैं? हम भी उस मर्यादा में रह सकते हैं कि हम उसके बाहर न जाए? कितने दृढ़ता, जिसको हम डिटर्मिनेशन कहते हैं, कितने कमिटमेंट, हाउ मच डेडिकेशन हम में है कि हम उस मार्ग जो हमने चुना है उस पर हम रहें और उससे भटके ना। ये सब आता है। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं यही कहूंगा कि गलत बात तो नहीं है कि हम अन्य जैसे ग्रंथों को मानते हैं या अन्य देवी देवताओं को मानते हैं, लेकिन जब तक हमको ये एहसास, ये अनुभव नहीं होगा
कि भगवान हम में है, तब तक परिपूर्णता, मैं इस आई डोंट नो इफ यू अंडरस्टैंड, परिपूर्णता मानी फुलफिलमेंट। हम इस जीवन में आए हैं एक खास लक्ष्य के लिए, परिपूर्णता प्राप्ति, टू फुलफिल द पर्पस ऑफ आवर लाइफ। यही परिपूर्णता को मैं लेकर के आपको बताऊंगा। जब तक हमको ये अनुभव नहीं होगा कि कॉन्शियसनेस, गॉड्स कॉन्शियसनेस इज ऑल परवेडिंग एंड इज इन मी। क्यों कहते हैं हम में है? क्योंकि अगर हम में है तो उसका यूज कर सकते हैं ना, उस परिपूर्णता को प्राप्ति के लिए। जैसे हम कहते हैं, मान लीजिएगा किसी और चीज से हमको संतुष्टता मिलती है, तो वो चीज तो कुछ भी नहीं है, हम उनसे संतुष्ट है, लेकिन that thing is neutral। एक फूल हो या जो भी हो, एक गाड़ी हो, गाड़ी का मतलब, मैं हमेशा ये एग्जांपल, ये उदाहरण लेता हूँ। एक गाड़ी, नई गाड़ी अगर कोई ने खरीद लिया, पहले दिन तो वो बहुत ही संतुष्ट होंगे, लेकिन 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद गाड़ी जब पुराना होता जाता है तो उनकी जो जितने उनके मन में संतुष्टि थे वो कम होता जा रहा है। गाड़ी का क्या, what is the fault of the car? The car has done nothing wrong. The car is just aging. So हम क्यों ना जो हमको संतोष होना चाहिए, हमको क्यों ना वो संतुष्टि हमारे अपने आप में ढूंढे, ना कि बाहर में ढूंढे। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जब तक हम अपने आप में जाकर के ना झांके, बहुत से ऐसे उल्टी बानी सदगुरु कबीर साहिब ने हमारे लिए छोड़े हैं, इसीलिए ताकि हम बाहर जाने के वजह हम अंदर जाए, उल्टी हम अपने आप में जाए। जब जाएंगे तब हमको पता चलेगा कितने हमारे में वो शक्ति है, जो दिव्यमान शक्ति जिसको कहते हैं, हम में भी है। जब तक हम उसको पहचानेंगे नहीं, until and unless we realize that, we will still be doing. Again, to answer, nothing wrong in believing in Ramayana, Mahabharata, doing puja and this and that. But the objective is for us to go within ourselves. ये जो मार्ग है, what we say, the journey is not outward, the journey is inward. हमारा journey जो है inward है, हमारे अंदर में है। तो I hope I've been able to answer your question. Thank you. राम कबीर, thank you. हाँ, गोविंद जी के बाद है शैलेश भाई। शैलेश भाई, राम कबीर कैसा है जी? राम कबीर। बहुत अच्छी बात की आपने, और आपने जो नई पीढ़ी के बारे में बात की, उसको जो भी कुछ इसके लिए करना है, तो हम वो कैसे करें? कई बार हम लोग ने जो सोचा है कि नई पीढ़ी के जो समस्या होती है, तो समस्या में क्या है कि उसका जो नया करियर शुरू हो रहा है और नई जिंदगी शुरू हो रही है, और उसके साथ जो हम आध्यात्मिक की बात करते हैं, तो हम उसके कैसे जोड़ सकते हैं कि जो आध्यात्मिक बात है और जो हमारा जो तत्व ज्ञान है, इससे वो उसकी नई करियर और नई लाइफ में कैसे जुड़ सके, जिससे जो नई जीवन का जो आपने जो बताया कि हमारा जो एक लक्ष्य है जीवन का, वो भी वो तय करे इसमें। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने पूछा है शशि भाई, क्योंकि ये तो बहुत बार हमको सुनने को मिलता है, खास तौर से जब हम, जैसे मैं कहता रहता हूँ ना, हम पूरब से आए हुए पश्चिम में बसते हैं, यहाँ का जो हवा है, बहुत वातावरण है, बहुत अलग है। तो देखिए, पहले बात आपको मैं कहूँगा, हम
किसी के भी जीवन पर, चाहे हमारे अपने बच्चे हों, हम उनके जीवन पर कब्जा नहीं कर सकते। ये पहले बात मैं आपको कहता हूँ। ये हमारा कोशिश, हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उन लोगों को सही रास्ता पर ले जाएं। तो पहले बात आपको मैं ये कहूँगा, जब बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, मान लीजिएगा 1 साल 2 साल का, तो वो अपने आप निर्णय नहीं कर सकते हैं। हमको करना चाहिए उन लोगों के लिए निर्णय। जैसे वैक्सीन लेना है, उन लोगों को क्या पता पोलियो के लिए वैक्सीन करना है या टाइफाइड के लिए वैक्सीन करना है, उन लोगों को क्या पता। हमको ये समझदारी है कि उन लोगों के सुरक्षा के लिए हमको ये करना चाहिए। तो जैसे उनकी उम्र बढ़ते जाते हैं, मान लीजिएगा मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, छोटी अवस्था से, जैसे भी उनके उम्र बढ़ते जाएंगे, हम कितने उन लोगों को उस समक्ष में रखें ताकि जो वातावरण है बाहर का, जो वातावरण है, हम देखिए, हम लोगों को स्कूल तो भेजेंगे ही भेजेंगे, वहां पर तो किन किन से मिलेंगे, कैसे, कौन सा असर पड़ेंगे, ये हम जैसे we cannot do anything about it। बट कहने का मतलब ये है, कितने हम उन लोगों को इस ऐसे वातावरण में रखें ताकि उन लोगों को ये प्रभाव बना रहे गुरुजनों का जो हम करते हैं। आपके सवाल में एक और बात मैं कहूँगा, ये मैं जैसे क्या कहते हैं, इट्स नॉट ए कंप्लेंट, आई एम जस्ट सेइंग, कई बार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स ही है इतने व्यस्त हो जाते हैं अपने बिजनेस में, अपने कार्य, अपने कर्म में, अपने जो भी वर्क, व्हाटएवर दे आर डूइंग जॉब, दैट थोड़ा उन लोगों से भी ये हो जाता है कि बच्चों का देखभाल अच्छी तरह से ना करना। तो कितने हद तक हम जब वो बच्चे की अवस्था में है, 5 साल 6 साल 7 साल, मान लीजिएगा 20 साल तक ज्यादातर, कितने हम उन लोगों को इस वातावरण में रखें ताकि जो प्रभाव होना चाहिए उनके जीवन में, because we say that, right, how their life will be shaped, will be molded, it depends a lot about how they have been shaped in their young age। एक बार किसी ने मुझसे कहा था, हम जो क्या कहते हैं पेरेंट की तरफ से, we give them tools। हम लोगों को अभी इस समस्या के लिए ये टूल है, उस समस्या के लिए अगर मुझको ये आ जाए तो मैं क्या करूं, ये टूल है। हम पेरेंट्स जो है, हम उन लोगों को टूल्स देते रहते हैं। अब उन पर अमल है वो टूल्स को कैसे उसका यूज करें। तो ये व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा था वो कहते थे, जो मैंने टूल्स उन लोगों को पहले दिया था वो रखते गए, इतने टूल्स हो गए, और इस समय तक जैसे वो 20 साल या 25 साल का हो गया, जो टूल्स उन लोगों को यूज करना चाहिए वो सबसे नीचे है, तो उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिस इज व्हाई व्हेन आई एम सेइंग, उन लोगों को हमेशा इस वातावरण में रखना चाहिए कि जो प्रभाव होना चाहिए, आध्यात्मिक जो प्रभाव होना चाहिए, हमेशा रहे। देखिए, और एक बात है, बहुत से लोग सत्संग में जब आते हैं दूसरे बार या तीसरे बार नहीं आना चाहिए, और वो साहेब तो एक ही बात दोहराते रहेंगे। तो ये बात को लेकर के, जैसे मैंने आपको कहा ना, जो टूल्स अगर हमने उनको दिया यहाँ पर रखे और दूसरे टूल यहाँ पर रखे, तो वो टूल जो भी हुआ, जो भी था, अब उन लोगों को मालूम ही नहीं है मेरे पास है या नहीं। तो इसीलिए हमको दोहराना पड़ता रहता है। तो प्रभाव बनाने के लिए हमको उन लोगों को इस वातावरण में, जैसे सत्संग है, जैसे जो आध्यात्मिक हम कार्य गतिविधियां हम करते हैं, उस वातावरण में उन लोगों को रखने के लिए ये हमारा कर्तव्य बनता है। आखिर में आपसे फिर से मैं यही बात करूंगा कि हम किसी के जीवन पर भी हम कब्जा नहीं कर सकते। हालांकि हमारे अपने बच्चे हों, कब्जा नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि वो 30 साल हो जाएंगे, उस समय वो ये सोचेंगे कि हमको ये रास्ता पर नहीं चलना है। हम अपने आप को दोषी नहीं मान पाएंगे, क्योंकि हम अपने कर्तव्यों को निभाए खूबी से। अगर वो नहीं निभाएंगे, जब उस स्तर पर आएगा तो ये उन पर बनता है। लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? हम कंट्रोल ओनली ऑन अस व्हाट वी कैन डू, वी डोंट हैव कंट्रोल ऑन व्हाट दे विल डू। लेकिन जो हमको करना है अगर हम करें
तो ये हम जैसे कभी भी हमको ऐसा नहीं महसूस करेंगे कि हमने सही ढंग से नहीं किया। फिर से आपको ये बात पर मैं ले आ रहा हूँ, अगर हम व्यस्त हैं हमारे काम में, हमारे बिजनेस में और ये नहीं देख पा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, तो दोषी कौन? इसीलिए जैसे हम नहीं चाहेंगे कि वो 1 साल का जब था जो भी वैक्सीन उनको लगाना था, टीका लगाना था, हमने नहीं लगाए, तो हम ही दोषी ठहराएंगे अपने आप को, उन लोगों को पता नहीं है। तो वैसा ही हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उन लोगों को जिम्मेदार बनाने के लिए, उन लोगों को आध्यात्मिक जैसे वातावरण में रखने के लिए हमारा क्या ये जिम्मेदारी, हमारा क्या कर्तव्य बनता है, ये हम बाखूबी से हम निभाएं, तो ही हम भी कहेंगे हमारा अपने जीवन सफल हुआ। थैंक यू। राम कबीर। थैंक यू शैलेश भाई। जय भाई, अभी तो हमारा कोई भक्तजन की प्रतिभाव नहीं है। हमारा जो मुख्य मंत्र है समाज का कबीर वाणी। प्रफुल भाई, भरत भाई हैज क्वेश्चन। ओ भरत भाई, सॉरी भरत भाई, गो अहेड। राम कबीर। हमारा समाज बहुत अच्छा था, अभी भी है और होगा भी, लेकिन हम लोग थोड़ा रास्ता भूल गए हैं। एक ने रास्ता चूज किया है कि हम मंदिर बना के उसके रास्ते पे चले और सबका उद्धार करें समाज। दूसरा, हम समाज को लेके चले और समाज पूरा एक करके उद्धार करें। हम 2 पटरी के ऊपर चल रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग को क्या ज्ञान दे सकते? बहुत धन्यवाद भरत भाई इस प्रश्न के लिए। देखिए, दोनों जो आपने अभी बताए हैं, दोनों जो जैसे मंदिर बना करके जो प्रचार करवाना और सभी को इकट्ठे जुटे रहना, ये दोनों अच्छे ही कार्य है। मेरे ख्याल में से ये 2 अलग पत्री की बात नहीं है, लेकिन उन 2 कार्य को कैसे एक बनाए, ये मेरे ख्याल से आपके लक्ष्य होना चाहिए। एक बात मेरे ख्याल में से आप बहुत अच्छी तरह से करते हैं, मेरा अनुभव है, मैं समझता हूँ कि जैसे भक्त समाज है, ज़्यादातर सभी आप लोग गुजरात से है, तो अपने बच्चे को गुजराती सिखाते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा ना आए कि देयर विल बी अ लैंग्वेज बैरियर, सो अब बात ही नहीं कर सकते हैं या वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब जो जुटाने की बात है, क्यों ऐसा होगा कि जब सभी लोग जुट जाएंगे एक ही तरफ नहीं जाएंगे, मंदिर की तरफ नहीं जाएंगे? क्यों नहीं होगा? हो सकता है कि अगर प्रचारक नहीं है, अगर कोई अच्छा प्रचारक नहीं है, अच्छा मानिए जैसे गुरुजन जैसे कहते हैं, अभी प्रभु भाई ने बताया है ना कि जैसे स्वामी श्री राम स्वरूपदास साहिब भी आए थे उस समय कालसंत मंदिर में, जगदीश साहिब भी आए थे कालसंत मंदिर में। तो मेरे ख्याल में से हो सकता है कि संत जनों के आने से और ज्यादा जैसे सभी लोग जुड़ करके एक ही कार्य में लगे रहेंगे। ये मेरे तरफ से मैं सोचता हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब एक मार्गदर्शक होता है और सभी उसी मार्ग पर चलते हैं, तब सभी उसी कार्य को लेकर के चलेंगे, ना कि एक इस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा। मुझको इतना पता नहीं कि आपने यही प्रश्न पूछा है या कुछ और। भरत भाई, अगर आपने कुछ और पूछा है तो फिर से दोहराइएगा, मैं थोड़ा उस पर चर्चा करूं। नहीं, उसमें क्या है कि हम लोग इंडिया से आए थे तो इतना बहुत लेके आए हैं। अपना बहुत अच्छा भक्त समाज इज वेरी गुड समाज, so we came as a Bhakta Samaj, but we came here and we are starting progressing, and we do have getting some problem, and we find out that we are going in a 2 different path. So now how we can come together again and go on the one path? That is the question I have. Yes, but what are the 2 paths? Like, this is what I want to understand. Is it vyavharik and adhyatmic? Is it like mundane and spiritual?
Yes, like that. One is like a samaj, and one is like adhyatmic. बहुत अच्छा, मैं समझ गया। मैंने पहले भी कहा है कि आध्यात्मिक ढंग से अगर हम समाज में जिए, सो वी हैव टू लिव बोथ लाइफ, वी हैव टू लिव द स्पिरिचुअल लाइफ एंड ऑल्सो द मंडेन लाइफ। मंडेन लाइफ मानी हमको खाना है, हमको पीना है, हमको सोना है, हमको घर देखभाल करना है, ये सब देखना है। लेकिन कैसे हम उसको करें? आसक्ति नहीं होना चाहिए, अटैचमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, आसक्ति नहीं होना चाहिए। अगर हम ये जो समाज को लेकर के, आपने अभी अभी कहा कितने तरक्की भक्त समाज ने किया है, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस तरक्की से हमको आसक्त नहीं होना चाहिए। उस जैसे that progress we should not be attached to it. It has to be part of what we are doing. अगर जो भी हम कार्य करते हैं, we don't start any work to fail, right? जो भी कार्य हम स्टार्ट करते हैं, वो क्या कार्य, जब हम एक उदाहरण के रूप में देता हूं आपको, जो भी अगर मान लीजिएगा आप एक नए बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, पहले आप क्या कहते हैं? भगवान का नाम ले करके हम उसको शुरू करते हैं, है कि नहीं? हम भगवान के नाम को ले करके, वो बिजनेस है। जब जो भी है, मान लीजिएगा आप नए होटल शुरू कर रहे हैं, लेकिन भगवान के नाम ले करके हम शुरू कर रहे हैं। सो द बैकग्राउंड इज स्पिरिचुअल। इट इज नॉट रॉन्ग टू डू द बिजनेस। बिजनेस तो करना अच्छी बात है, तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन हम उसको किस तरह से करें? डू वी डू इट लाइक, अगर हम मान लीजिएगा गलत तरीके से उसको करें तो ये सही नहीं होगा। भगवान के नाम को लेकर के अगर हम गलत काम करते हैं तो ये दो अलग मार्ग हो जाएंगे। लेकिन हमको इतना व्यस्त नहीं होना चाहिए अपने बिजनेस में, इतने हम व्यस्त ना होए कि हम हमारा आध्यात्मिक रास्ता भूल जाए। तो दोनों को साथ लाने के लिए हमको दोनों ही करना चाहिए। इट कैन बी डन। ये तो डुएबल है, इट इज पॉसिबल। जो हमारा प्रैक्टिस है, जिसको हम साधन कहते हैं, जो हमारा साधन है हमारा दैनिक जीवन में, क्या करते हैं? अगर मान लीजिएगा हम सुबह उठ करके हमको बिजनेस में जाना है, मोटर में जाना है, या जहां पर भी जाना है, काम पर जाना है, अगर हम ये भूल जाए कि हमको ब्रेकफास्ट लेना है, ये तो सही बात नहीं होगा ना, क्योंकि हमारा अपने स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक है। जैसे हम नहीं भूलते हैं कि हमको ब्रेकफास्ट लेकर के बाहर जाना है, हमारा चाहे हमारा काम ही हो, बिजनेस ही हो, वैसा ही जो हमारा आराधना है, ईश्वर का पूजा है, साहिब का पूजा है, वैसा ही वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इट इन आवर डेली लाइफ। तो दोनों साथ साथ में चल सकता है, ये ऐसी बात नहीं है कि नहीं चल सकता है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, ये गलत बात है। समय तो है, समय का उपयोग कैसे करते हैं ये प्रश्न है। हम उसी समय, सभी के पास तो 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे को हम कैसे उसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में, ये हम पर है। वी डिसाइड, हम उस पर अमल करते हैं कि हम सुबह उठेंगे, ओके हम 6 बजे उठते थे, अब हम 5 बजे उठेंगे क्योंकि हमको आराधना करना है, हमको पूजा करना है। अगर ये दृढ़ता हम में नहीं है कि हम 5 बजे उठ सकेंगे, तो हम कहेंगे समय नहीं है। दोषी कौन? दोषी समय नहीं हो सकता है, दोषी हम ही है, क्योंकि हमने वो समय नहीं निकाला अपने जीवन में। अगर हम रात देर तक हम जा करके सोते हैं, जब हमको ज्यादा अर्ली, हमको मान लीजिएगा 10 बजे हमको सो जाना चाहिए, दोषी कौन? समय नहीं है, हम ही है। तो हाउ डू वी allocate all that we have to do in our 24 hours decides how we can accomplish both. They are not, now ये बात आप दिमाग में रख लीजिएगा, they are not conflicting. मैं आपको सही बात बता रहा हूँ। बिजनेस इज व्यवहारिक एंड स्पिरिचुअल, they are, जब वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, जब उनमें तकरार आ जाए, तब हमारा हानि हो जाएगा। तकरार नहीं होना चाहिए।
कैसे हम बिजनेस को संभालते हैं, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर बिजनेस रिलीजियसली। हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, उसको हम बहुत अच्छे तरह से, तो कैसे, अगर हम में वो भाव नहीं है तो हम उसको कैसे अच्छे से बढ़ाएंगे? तो भाव होने के लिए हमको जो साधन है, आध्यात्मिक साधन है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, मेडिटेशन हो, आराधना हो, जो भी हो, उसको भी हमको रहना है। It's the same thing. Many people nowadays talk about meditation. Oh, I've worked 8 hours back to back. I didn't have. No. Pause. Go sit just for 10 minutes. Take deep breath. ऐसे कहते हैं ना सभी लोग। अभी तो ये बज़वर्ड हो गया, मेडिटेशन। लेकिन हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। ये जो सुमिरन हम कहते हैं, हमारा जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। अगर हम सुमिरन में बैठेंगे, ओह आधे घंटे हमारा तो व्यर्थ हो गया, हम सुमिरन में बैठे हैं, वहां पर बिजनेस का हानि हो रहा है, तो ये गलत बात है। इसीलिए हमको हमारा जीवन, हमारा 24 घंटे कैसे गुजारे, हमको अमल, वी हैव टू ड्रॉ इट। हमको ये करना है। उस समय हमको कोई भी दिक्कत नहीं, nobody should disturb us at that time. That half an hour is for my meditation. I am doing my meditation. चाहे बिजनेस भार में जाए, बिजनेस भार में नहीं जाएगा कभी भी। मैं आप टेक माय वर्ड, आई कैन साइन इट। बिजनेस वो आधे घंटे में अगर आपके बिजनेस में भार में चला गया, तो जो व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 23.5 hours, उस समय क्यों नहीं गया? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ भरत भाई के दोनों हो सकता है। कैसे हम उपयोग करते हैं हमारे अपने समय को आध्यात्मिक उसमें इंकोपोरेट करने के लिए, ये डिसाइड करता है। ये हमको उस लेवल पर पहुंचाते हैं कि हम दोनों को बाखूबी से निभा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू जय भाई, थैंक यू भरत भाई। हमारे मुख्य मंत्र कबीर वाणी हमारे समाज में दर महीने नियमित मिलता है सब भक्तजन को। तो उसकी जो ज्ञान वाणी है वो हमें व्यक्तिगत विकास में और सामाजिक विकास में मदद करती है। कबीर बीजक है हमारे पास, उसमें से लेकर 5 किताबें हमारे समाज में है। वो दोहा है, भजन है, वो सबका हम पढ़ते हैं और ट्राई टू फोकस एज योर इंस्ट्रक्शन। तो वो हम सब करते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बड़ा है, लेकिन जो कोई प्रॉब्लम है वो हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। और ये अगले कबीर विजडम में भी आपकी कृपा होगी तो हम आपको आमंत्रण देंगे। तो आज ये कबीर विजडम कार्यक्रम समाप्ति की ओर जा रहा है। और थैंक यू एवरीबॉडी टू जॉइन विथ अस। अभी हम शांति प्रार्थना करके आज जो क्रिकेट टूर्नामेंट में हमारे प्रेसिडेंट और हम सब भक्त भाई बहनों हाजिर हुए थे उधर डालास में, तो इसीलिए थोड़ी हमारे संख्या कम रही है जय भाई, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह से आपको सुना और हम अमल करेंगे। अगला कार्यक्रम हमारे कबीर विजडम में सैन एंटोनियो से આપણા શું નામ, આશાબેન મધુસૂદનભાઈ ભક્ત, સન એન્ટોનિયો ટેક્સાસ, તેઓ આપણા મુખ્ય વક્તા રહેશે. સો હવે શાંતિ પ્રાર્થના કરીને આપણે છૂટા પડીશું. હરિ ઓમ. પૂર્ણયે છે પૂર્ણયા છે, પૂર્ણથી તો પૂર્ણ યોગ્યો છે બધું. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણયાપી દો ભલે, શેષ પાછળ પૂર્ણ રહેવાનું સદા. ઓમ શાંતિ.
शांति शांति. Ram Kabir, the meeting will be adjourned. Thank you.